जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सनेहे अर भै नहीं जांकै, कंचन माटी मानै। नह निंदया नह उस्तत जांकै, लोभ मोह अभिमाना। हरख सो तेरा है न्यारो, नाहि मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै, जग तेरा है निरासा। काम क्रोध जे परसै नाहिं, तेह काट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नर को कीनी, तेह ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। गुर कृपा जे नर को कीनी, तेह ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। वाहिगुरु जी चरणार बिंदु मन विध्यं, सिद्ध्यं सर्व कुशल। गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण। चरणार बिंदु मन विध्यं, सिद्ध्यं सर्व कुशल। गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण। शुभ वचन रमणं गवणं साधु संगेन। उदरण संसार सागरं, नानक पुनरप जन्म न लभ्यते। वेद पुराण शास्त्र विचारं, एक ओंकार नाम उपहारं। कुल समूह सगल उद्धारं, बड़ भागी नानक को तारं। सिमरणं गोविंद नामं, उदरणं कुल समूहेन। लभदेयं साधु संगेन, नानक बड़ भागी भेटंत दर्शन। सर्वदोग परम त्यागी, सर्वधर्म दृढ़ंतन। लब्धेन साधु संगेन, नानक मस्तक लिख्यन। होयो है होवंतो, हरण परण संपूर्ण। साधु सत्यम जानो, नानक प्रीत कारणं। सुखेन बैन रत्नं, रचनं कसुंभ रंगण। रोग शोक देवगं, नानक सुख ना सुपन। सुखे बैन रत्नं, रचनं कसुंभ रंगण। रोग शोक देवगं, नानक सुख ना सुपन है। वाहिगुरु जी का खासा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु हजूर आन लोग बैठे, मान लोग सत्संग गुरु प्यारे। गुरु पातशाह जी की बख्शा की बरकत के पात्र।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਧਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲਤ ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਤ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਲਾ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲਤ ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੈ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਕਰਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲਤ ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਤ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ। ਕਦੀ ਸਤਨਾਮੀਏ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰੀਏ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੀਕ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਢਾਉਣ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲਤ ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੈ ਨਿਵਾਸ ਹੈ।
सतगुरु जी का वचन आया, धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का, कहन लगे संगत विच जुड़ना हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। की वचन होया भला? हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। धर्म के खेत्र में जोड़े वधिया काम आखे जा सकते हैं, वधिया यतन आखे जा सकते हैं, कर्मा सिर कर्म जोड़े आखे जा सकते हैं, वो कर्मा सिर कर्म है हर कीरत। किथे? साध संगत। संगत में जुड़ के करतार का जस करना, करतार नाल जुड़ना, उसकी सिफत सलाह करनी है, सिर कर्मन कै कर्मा। फिर कहने लगे कि इन्हों मिलता है, कहो नानक। हाँ जी, तिस भयो परापत। कहो नानक तिस भयो परापत, जिस पुरब लिखे कर। एक बार आखो हाँ वाहिगुरू। उन्होंने प्राप्त होता है जिन्हों के उपर रब मेहर करे, जिन्हों के उपर करतार कृपा करे, उन्होंने मिलता है। मैं हम बहुती विचार इस पासे हुण ना करा, लेटर जाके आप करांगे। अज दो श्लोक भी सतगुरां ने ना खास तौर पर ना साध संगेन, साध संगत के बाबत विशेष तौर पर आखे ने। फिर आप समय अनुसार उनको विचार करने का यत्न करांगे। सब तो पहला जो श्लोक है 19वां श्लोक। 19वें श्लोक के विच गुरु पातशाह महाराज की आखदे ने, चरणार बिंद मन विद्यं सिद्धिं सर्व कुशल गाथा गावंत नानक पद्यं परापूर्वन। गाथा गावंत नानक पद्यं परापूर्वन। चरणार बिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्वकुशल। मैं पुथी ना रखी तो मैं क्या चलो ये काम सार लवेंगे। आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बाणी जी फील की अज कर जाती थोड़े सारे होनी है, पर जो आनंद ना पोथी रखिया आता है ना, वो इनू हथ च लिया हुआ वो आनंद नहीं आता है। फस्ट टाइम मैं थोड़े को आके ना एवं करने का यत्न किया। चलो समा लंघ गया। सतगुरु जी ने वचन किया, चरणार बिंद मन विद्यं। जिन्हों का विद्यं में ना विद्या होया है, विचा होया है। जिवें किसी चीज़ विच ना सुई लगा दी तो विन्या जाता है। जिन्हों का मन चरणार बिंद विद्यं, वाहिगुरु जी दे चरण कमलों नाल, अरविंद कहते ने कमल, वाहिगुरु जी दे चरण जिहड़े कमलों वर्गे सोहने ने, कमल फुल्लां वर्गे सोहने ने, इसलिए चरण कमल आख्या गया, चरण चरणार बिंद आख्या गया। मन विद्यं, जिन्हां दा मन विद्या, सिद्ध्यं सर्व कुशल है। कुशल कहते ने सुख नूं, उन्हां दे सारे सुख सिद्ध हो गए, हर प्रकार के सुख उन्हां दे सिद्ध हो गए। अगे की आखिया, गाथा गवंत नानक। गाथा नाम है जिक्र करन दा। इस रचना का बाणी का नाम भी गाथा गुरु साहब ने लिखा। शायद इसे करके ही ये लिखा कि ये इस प्रकार के वचन सतगुरां ने अंकित किए हुए हैं। तो गाथा तो भाव है जिक्र, गाथा तो भाव है कथा। जिस वेले कोई कथा करता है, वाहिगुरु जी के गुणों की विचार करता है, वाहिगुरु जी के नाल जिसका मन विद्या होया होता है, सिद्ध्यं सर्व कुशल ने। लेकिन कहते हैं प्राप्त किवें होता है? भव्यं परापूर्वन है। परापूर्वन तो भाव है हूँ सब तो पहला लिखण वाला साडा कौन है? साडे मस्तक ते लिखण वाला कौन है? मथे ते कौन लिखण वाला है?
जिसने सानू लिख के भेजे आ। इतने सारे लोग मिल जाएंगे अज की दुनिया में भी मिल जाते हैं जिन्होंने असी पामिस्ट आखते हैं, हथ दी उंगलों वेखण वाले, रेखावां वेखण वाले सारे बड़ा दावा करते हैं। पामिस्ट्री करने वाले जोड़े बड़ा दावा करते हैं। कोई उन्होंने बड़ा सियाणा सज्जन, सचमुच सियाणा सज्जन मिल जाए, वो साढ़े आने वाली भविख दी गल्लां बारे कुछ दस सकता होंदा है, अंदाजे लगा सकता होंदा है। लेकिन ये लिखण वाला कौन है? हथ दी रेखावां, मत्थे दी रेखावां लिखण वाला कौन है साडा? और अज नहीं लिखियां, भावें वो सदा ही लिख सकता है तो सदा ही लिखता रहता है, पर निक्के निक्के बच्चे जिसले जन्म लेंदे ने ते कोई सियाणा पुरुष आ जाए तो हथ वेख के ते मापिਆਂ ਨੂੰ दसन लग पैंदा भी ये बच्चा बड़ा हो गया कुछ बनेगा। कदों लिख देते उसने? जन्म तो भी पहला, बच्चे दे जन्म तो पहला लिखण वाले ने लिख दिते कि यह बच्चा बड़ा हो के आ काम करेगा, यह कुछ बनेगा, ब्याह होगा, एक होगा, वधीक होणगे, बच्चे होणगे, एक होणगे, वधीक होणगे, ये इत्थे रहेगा, प्रदेश में चला जाएगा, कितना को अमीर होगा, जां कुछ होर गल्लां होणगियां। ऐसा सारा कुछ हैगा। सतगुरां ने महाराज ने ना एक सानू टो दी, कहने लगे आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया, समझे गल? बोलो सारे, आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया, सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं, आदेश तिसै आदेश, आदि अनील अनादि अनाहत जुग जुग एक होवेस, आसन लोए लोए भंडार। जिन्ने लोग ने सारिया थावां ते उहदे आसन ने, सब थावां ते टिकिया होया है, और जो किछ पाया सो एका वार। जितने खंड ब्रह्मंड ने उन्होंने जो कुछ उन्हें पाना सी इको वारी पा दिता। असी तो एक खंड दे विच वसन वाले लोग इउं नहीं सोच सकते कि साडे अंदर भी उन्हें जो कुछ पाना सी इको वारी पा दिता, लिखण वाले ने लिख दिता। हुण सतगुरु महाराज कहते हैं, जे तुसी कदी ये दावा करो कि यह सारा कुछ मेरे यत्नां दे सदका होया है, मैं बड़ा सियाना हाँ, सतगुरु ने फिर साडी हौमे विरत करदे कहते नानक अभ्यम परापूर्व है, जिन मस्तक धुर हर लिखे आ। गुरु पातशाह जी अं चेता करवाते, जिन मस्तक धुर हर लिखे आ, तिन सतगुर मिलिया राम राजे, अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बढ़िया, हर लद्धा रतन पदार्थो फिर बहुड़ ना चलिया, जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया, जिन मस्तक धुर हर लिखिया। अजिहियां गल्लां ना ध्यान विच लियाउण तो गुरु साहब दा जिहड़ा सफल यतन है वो ये है कि बंदे जिहड़े जुड़ बैठते हैं, धर्म वाले पासे तुरते हैं, कभी भी अपने मन में ये गुमान ना लियाउण कि ये मेरे उद्यम करके होया है, ऐं समझन ये भी गुरु पातशाह जी की कृपा है। सियाणे बंदे सियाणे जिहड़े सिख ने ना, वो हमेशा गल करदियां करदियां हमेशा ही कहते रहंदे गुरु महाराज की कृपा सदका, गुरु महाराज की कृपा सदका। जिहड़ा ना जुड़िया होया होगा ना इस तरह, जिन्हां दे अंदर ये पकड़ ना होएगी, वो कहेंगे यार ये गल क्यों जी करदा, हर वेले गुरु महाराज की कृपा सदका, गुरु महाराज की कृपा सदका। पर सच यही है, गुरु महाराज की कृपा सदका। एक घटना मिलती है इतिहासक, मैं तुहाडे नाल सांझी करके अगे चलना।
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਖਦੇ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੋਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅਲੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਜੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਅਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਾ ਆਹ ਵੇਲਾ ਸੌਣ ਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਇਹ ਉਮਰ ਸੌਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੌਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਸੋਚ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤੁਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਚਾਹ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਪ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਭਲਾ, ਜਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੀ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸੱਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਏ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਮੁੜਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ? ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਚਾਟਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਛਿੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਨੀਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਨੀਗਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਫਿੱਟ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ,
ये मेरिया भैनां वधेरे जानदियां ने, एवें थोड़ा तोला को 2 तोले विच पाया, सारे का सारा चाटा दुध का जिहड़ा सी फुट गया। इउं क्यों नहीं हुंदा कि सारे का सारा चाटा दुध का है तो वो 2 तोले विनीगर भी अपने वर्गा बना लो, इवें क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, ये करतारी भेद है, कोई नहीं जानता। बुद्धि फुटण वाले पासे छेती तुरदी है, सौण वाले पासे घट तुरदी है। तो जिन्हां दी तुरदी है ना, जिन्हां दा मन विध गया, जिन्हां दा मन जुड़ गया, गुरु पातशाह धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहते हैं उन्होंने दे जीवन में सारियां सिद्धियां हो गई, फिर उन्होंने सारे कार्य सिद्ध हो गए। मैं एक उदाहरण देनी चाहूँगा तुहानूं। उदाहरण मैं अर्ज कर लगा बाबा बंदा सिंह होरां दे जीवन दे विच 1710 दे विच 14 मई नूं सरहंद दे उपर कब्जा होया ते फस्ट टाइम खालसा राज का झंडा चढ़िया। फस्ट टाइम गुरु के नाम ते लोहगढ़ के स्थान ते सिक्के ढाले गए, टकसाल दे विच सिक्के ढाले गए, मिंट विच गुरु के नाम के झंडे चुके। उन्होंने दिनों के दौरान ही लुधियाने के कोल ना एक पिंड है पुरानी कलां, जे तुसीं उधर लुधियाने के नेड़े किते गए हो उस इलाके में या उत्थों का कोई रहने वाला प्रेमी कोई परिवार घर हो तो तुहानूं पता होएगा। पुरानी कलां, वड्डी पुरानी, वड्डी कुड़ानी के विच ना उत्थे एक वेरा सतगुरु महाराज गुरु हरगोबिंद साहब गए सन। इउं आखदे ने कि उत्थे 7वें पातशाह भी गए सन। ते याद विच ना इतिहासक स्थान बनया होया, अजे भी बनया, मैं दर्शन कीते। एक गुरु का प्यारा, गुरु का सिख, उन्हां दिनां दी गल ते दुतारा उहदे कोल, दुतारा जिवें किंग वेखदे ना आपां एक तार वाली, उन्हां समय में 2-2 तारां वाले ना इउं किंग वांगू हुंदा सी जिन्हों दुतारा बोलिया जाता सी। उन्हां दिनां 'च यह हारमोनीयम नहीं हुंदा सी जिहड़ा हुण अजकल अपने 'च बड़ा प्रचलित हो गया। दुतारा सिंह दे कोल ते ओह गुरुद्वारा साहब ना अंदर पहुँच गया ते उन्हें वेखिया शाम का समा है ते शब्द कीर्तन करन लग गया, शब्द गाउण लग गया। शब्द गा के ना जद नूं सोदर का टाइम हो गया तो उन्हें सोदर का पाठ किया, सोदर रह रास का पाठ किया। तो जिवें फिर साडी मर्यादा है सोदर का रह रास का पाठ करके फिर अरदास की जाती है। सिंह ने खड़ो के अरदास की ते अरदास करदियां करदियां जिवें साडी मर्यादा है उस वेले दे विच चिन्ह सानूं मिलदे ने कि अरदास करदियां करदियां भी सिंह आखिया करदे सन तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू, बोलो जी वाहिगुरू, बोलो जी। अयों आखिया ना जिस वेले जिहड़े उत्थे दे लोग जुड़े हुए सन, जिन्हों असीं कह लईए संगत जुड़ी हुई सी, संगत ने सिंह नूं ढालिया, दुतारा कोलों फड़ के वो तोड़ भन दिता ते सिंह नूं बहुत मार मारी उसने। ये सारी गल का कारण ये सी कि स्थान तो भावें ना 6वीं पातशाह महाराज के 7वें पातशाह महाराज का चरण छोह स्थान से, पर उस वेले जिहड़ा कब्जा सी ना वो राम राइयां का कब्जा सी। राम राइये समझते हो जिहड़े गुरु हरराज साहब 7वें पातशाह होए ना अपने, उन्होंने वड्डे बेटे का नाम सी राम राय। राम राय ने 8वें नूं गुरु हरकिशन साहब नूं गुरु के तौर पर मानता ना दी तो आप बराबर गद्दी ला के बैठ गया। कुछ समय बाद ना राम राय तो परत के मुड़ के आ गया, ऐसे सानू इतिहास को मिलती है, इतिहास मिलता है। लेकिन जिहड़े लोग ना उहदे पिछे पहला तुर पे राम राय के चलाने तो बाद भी उन्होंने गद्दी राम राय की वखरी कायम रखी है। तुहानूं देहरादून जाण का मौका बने तो तुसीं जाके इस गल नूं समझ सकते हो। और अज भी इतिहास में ये गल आखी जाती है
कि जिहड़े गुरु के ने कहाउण वाले, जिहड़े गुरु पंथ नूं मनण वाले ने, जिहड़े पंथ विच शामिल होए ने, वो भुल के भी प्रीति चंदीए, मीनियां दी, राम राइयां दी, धीर मलियां दी संगत ना बैसन। जिहड़ा बैसेगा, संगत करेगा, वो तनखाइया होएगा। राम राइयां दे लोग सन, वो स्नेही सन या संगत सी उन्हां दी, उन्होंने गुरुद्वारे ते कब्जा किया होया सी। उन्होंने ये बोल बड़े चुभे कि कोई अजे भी आखे गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल प्यार करने वाला इवें आखे आके शब्द पढ़ लवे, असीं भी शब्द पढ़ लेंदे। राम राइये भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करते हैं, बाणी का प्रकाश कर लेंदे, या यूं कह लो कर लेंदे सन। हौली 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 ना दूर हो गए। शब्द असीं भी पढ़ लेंदे हाँ, इन्हें भी आके शब्द पढ़ लै, पर यह शब्द पढ़ता की मुड़ मुड़ के आखदा है, खालसा जी तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। किन्हां दी कमाई का? 5 प्यारियां, 4 साहबजादियां, 40 मुक्तियां, 8 जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग आई, जिन्हां वेख के अमृत कीता। सिंह उठिया, संभलिया, संभल के जाके ना बाबा बंदा सिंह होरां नूं दस्सिया, बाबा जी मैं फलानी थां ते गया और इस तरह बरतारा होया। मैं गुरु का एक निमाणा सिख हाँ, एक नाम तरीक सिख हाँ। मैं मेरा दुतारा फड़ के खो के मेरे को भन देन, ये गल एडी दुख वाली नहीं है। मेरी दस्तार ला के मेरे केस खोल के मैनू कुटन ते मारन, केसां की बेअदबी करन, दुख तो बड़ा है, पर इन्ना दुख नहीं है मैनू जिस वेले उन्होंने ये बोल आखे तो जिन्ना दुख होया ना कि आप मुआ पुत्र मुए, मुए ना वाहिगुरू बोल, ऐ आखिया राम राइयां ने। मैं फिर वाक बनाऊँगा, इतिहासक बोलने तुसीं ध्यान करना कि ये अर्थ बनते हैं। आप मुआ पुत्र मुए, मुए ना वाहिगुरू बोल, की होया अर्थ भला? राम राइयां ने यह आखिया है कि गुरु गोबिंद सिंह आप मर गया, पुत्र उनके मर गए, पर वाहिगुरू वाहिगुरू बोलने वाले खालसा नहीं मरिया अजे तक। आप मुआ पुत्र मोए, मोए ना वाहिगुरू बोल, खो दुतारा भन्नियो ते मारियो केस मोए खोड़। मेरे को दुतारा फड़ के भन दिता ने ते मेरे केस खोड़ के उन्होंने बेअदबी की, मारिया। मैं सुन के ना बंदा सिंह जी बाबा जी होनी इतिहास का एक पुरुष है, सिख इतिहास का। तुसीं कहोगे ज्ञानी जी रुक जाते हैं, हर गल की व्याख्या करन लग पैंदे ने। अच्छी गल है, माड़ी गल नहीं। मेरा मकसद जिहड़ा है ना वो सिर्फ केवल साखी सुनानी या नावलकारां दे वांगू कोई नावल सुना देना मेरा मकसद नहीं है। आपां शब्द की विचार व्याख्या करने वास्ते जुड़े हुए हैं। सिख इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति मिलता है जिसनों शुरू तो लैके साडा इतिहास बाबा कह के याद करता है। सिर्फ एक व्यक्ति है, वो बंदा सिंह। बाकी जिन्होंने बाबा कह के याद किया जाता है, असीं जोरावर सिंह नूं बाबा आखदे हैं, साहबजादे नूं बाबा आखदे हैं, प्रीति चंद होरां नूं भी बाबा आखदे हैं, होरनां नूं भी जिहड़े गुरु की संतान ने उन्हां बाबा आखदे हैं। पर जिहड़े गुरु की संतान नहीं है या फिर उन्होंने बाबा आखते हैं जिहड़े उम्र करके ना वडेरी उम्र वाले हो गए, बाबे हो गए। जिवें आरंभ दे विच बुढ़ा जी नूं भाई बुढ़ा कह के हमेशा याद किया जाता रहा, धन भाई बुढ़ा जन गुरु लद्दा। लेकिन जिस वेले बुढ़ा जी 125 वरियां की उम्र तक पहुँच गए
तो जिवें आम तौर पर हुंदा है कि जदों पोतियां दोतियां वाला हो जाता है तो समाज में उन्होंने बाबा आख्या जाता है, सत्कार के नाल उन्होंने बाबा आख्या जान लग गया। कुछ माझे दे विच वैसे इस अखर नूं भाई के तौर पर बहुता वरतिया जाता है, पर जिस व्यक्ति नूं गुरु इतिहास विच गुरु घर विच आउण तो लैके शुरू तो लैके बाबा पद मिलिया मान वाला, वो केवल बंदा सिंह होया। भावें उन्होंने कुछ इतिहासकार इउं लिखते हैं, भाई साहब कान सिंह होरां वाले वांगू कि अमृत छकण तो बाद उन्हों का नाम गुरबख्श सिंह रखा गया, पर डॉक्टर गंडा सिंह लिखते हैं उन्होंने नाम नाल ना इउं सारी तरतीब जी बन गई, नाम बन गया बाबा गुरबख्श सिंह बंदा बहादुर। गुरबख्श सिंह जिहड़ा सी वो घट जानिया गया, बाबा बंदा बहादुर करके वधेरे जानिया गया। अक्सर बाबा बंदा सिंह बहादुर करके लिखिया पढ़िया जाता, और उस वेले दी लिखतां विच दूजियां ने इवें लिखिया है, डॉक्टर गंडा सिंह लिखते। खैर जिस वेले बाबा जी कोल आके यह जिक्र किया ना बंदा सिंह होरां दे कोल कि भन दुतारा मेरे भन्निओ ते मारियो केस मोए खोल, ते नाल ये वचन किया भी आप मूआ पुत्र मूए मूए ना वाहिगुरू बोल। बाबा जी कहने लगे ऐसे जालिम लोग, ऐसे पंथ दुखी लोग, ऐसे गुरद्रोही लोग जेड़े इस ताक विच ने कि ये गुरु घर की सारी जिहड़ी लहर है मूवमेंट है ये कदों खत्म होंदी है, जेड़े हमेशा इस ताक विच ने उन्होंने ढुकवी सज़ा देनी बनती है, उन्होंने सज़ा दी जाएगी। जेड़े ये तांगते ने भाई गुरु गोबिंद सिंह मर गया तो चंगा होया, पुत्र उनके मर गए तो चंगा होया, खालसा अजे तक क्यों नहीं मरिया। और सन भाई आली सिंह माली सिंह होरी जिन्होंने सरहद का उन्होंने नायब फौजदार ठहराया सी, उन्होंने सदके कहन लगे आली सिंह जी तुसीं ना ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ फौज ਨੂੰ ਲੈ के ਤੇ जाओ ਘੁੜਾਣੀ, ਘੁੜਾਣੀ जा के ना उन्होंने ये गल दस दिओ कि जिस खादसे के बाबत गुरु गोबिंद सिंह जी ने आखिया ना जफरनामे दे विच कि की होया कि 4 बच्चे 4 साहबजादे साडे शहीद हो गए। की होया चेहा शुद्ध कि चूं बचगां कुश्ता 4। की होया तू 4 बच्चियां नूं मार दिता है कि बाकी बामां दे हस्त पेचीदा मार। चे मर्दी के अगर खामोशा कुनी के आतिश दमारा फरोजा कुनी। इसके अर्थ बनते ने ये की मरदानगी है। चे मर्दी कि अखर खामोशा कुनी, अखर कहते हैं चंग्याड़ा, 4 चंग्याड़ियां नूं बुझा दिता कि आतिश दमा जिहड़ी अग पहला ही बड़ी बढ़ती पई सी फरोजा कुनी, तो उस अग नूं होर भड़का दिता। और याद रखी 4 नूं मार दिता, चेहा शुद्ध के चूं बचगां कुश्ता 4 के बाकी बामां दे हस्त अजे बाकी बचिया होया है कौन पेचीदा मार। मार फारसी में कहते हैं सप नूं, पेचीदा तो होंदा है पेचदार वड़दार कुंडलिया। ये कुंडलिया सप जिहड़ा है जिउंदा है, तो विद्वान अर्थ करते हैं ये कुंडलिया सप महाराज अपने बाबत नहीं कह रहे सन, कुंडलिया सप गुरु साहब खालसे के बारे कह रहे सन। बाबा बंदा सिंह कहते हैं जिस दे बाबत गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुकूमत नूं लिख रहे हैं, औरंगजेब नूं लिख रहे हैं कि पेचीदा मार मौजूद है। ये घुड़ानी वाले उन्होंने मर गया मुक जाना चाहते हैं। आली सिंह जी तुसीं जाओ उन्होंने सज़ा दिओ ते दे के सज़ा उत्थे थाना कायम करो, ते उस थाने का थानेदार ऐ कीर्तनिया होना चाहिए, ऐ सिंह होना चाहिए। और इतिहास लिखता उन्होंने नाम, उन्होंने नाम सी भाई साहब सरदार बुलाका सिंह। की नाम सी? सरदार बुलाका सिंह।
इवें ही होया। आली सिंह होरी गए जिहड़े राम राइए सन, जिहड़े इहो जिहियां हरकतां करन वाले सन, उन्हां नूं योग सज़ावां दित्तियां। योग सज़ावां देण दे नाल नाल उत्थे थाणा कायम कीता। खालसा राज दा पहला थाणा घुड़ानी दे विच उत्थे कायम होया ते उस थाणे दा थाणेदार जिहनूं बनाया गया, वो किस नूं बनाया गया? सुधार बलाका सी गवर्नर भाई साहब होरां। वाहिगुरू, मैं कई बार ना महसूस करदा हाँ, बाबा बंदा सिंह होरां नूं भी याद करदे हां। असीं भी बंदा सिंह ही सन, नो डाउट बंदा सिंह ही सन। पर भाई बुलाका सिंह वर्गे शब्द के नाल प्यार करने वाले साडे च किन्ने कुछ सिख है, जिहड़े शब्द नाल प्यार करने वाले होण, बाणी नाल प्यार करने वाले होण, गुरु नाल प्यार करने वाले होण, ते गुरु प्यार दे सदका, गुरु साहब दे नाल प्यार करन करके ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਤਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਪਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਮਨ ਵਿਧਿਅਮ ਸਿੱਧਿਅਮ ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗਾਥਾ ਗਾਵੰਤ, ਉਹ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਥਾ ਗਾਵੰਤ ਨਾਨਕ ਅਭਿਅੰਗ ਪਰਾਪੂਰਬਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਓ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਰਮਣ गवणं साध संगेन उदरणे संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते शुभ वचन रमण। ਜਿਹੜੇ ਲੋग वाहिगुरु जी की बाणी, सतगुरां की बाणी पढ़ते हैं, याद करते हैं, गवणं साध संगेन ते संगत विच जाके करते हैं, जाते हैं, उधरना उन्हों का उधार हो जाता है। संसार सागरम, जिहड़ा ये भव सागर है, नानक पुनरप, फिर मुड़ मुड़ जन्म ना लभ्यते, उन्होंने मुड़ मुड़ के जन्म नहीं लेना पेगा। तुसीं ध्यान कीता कितनी वड्डी गल कीती गुरु साहब ने। संगत विच आउणा कितना महान है, कितना खास है। भाई साहब और नंद लाल जी का बचन मेरे ध्यान में आया भी तुहाडे नाल साझा करा। एक दिन गुरु कलगीधर पातशाह त्रुठे, बहुत त्रुठे, ते त्रुठ के कहन लगे, भाई जी मंगो जो तुहाडे मन में आउंदा है, जो मंगोगे तुहानूं देंगे असीं। भाई साहब कहन लगे, महाराज मैं रोज़ तुहाडे दर्शन करदा, रोज़ तुसीं मैनूं सदा प्यार देंदे हो, बख्शिश करदे हो, मैं होर की मंगना। गुरु साहब कहते हैं मंगो फिर भी तुहाडे मन में कोई ख्वाहिश है तो भाई साहब फिर लिखते हैं मैं की मंगया। कहते हैं शबद कुर्बान खा के राहे संगत दिले गोया, हमी बस आरजू करद शबद कुर्बान। मैं कुर्बान हो जावां, किस तो कुर्बान हो जावां? खा के राहे संगत, संगत दे राहां दी खाक तो, संगत दे राहां दी धूड़ी तो। किस तो कुर्बान हो जावां? संगत दे राहां दी धूड़ी तो मैं कुर्बान हो जावां। खाक राहे संगत। शायद कहने लगे कुछ होर भी मंगना चाहते हो? कहने लगे नहीं, दिले गोया नंद लाल दा दिल हम ही बस आरजू कर, बस यही एक इच्छा रखता है। इवें क्यों आख्या जाता है? जुड़िया होया दी धूड़ जिस वेले मस्तक ते लग जाती है ना, बंदा जुड़ जाता है। इट डज मीन
जुड़िया होया दे विच कोई आके बैठ जाता है, जुड़िया होया दे नाल कोई जुड़ जाता है, तो जिस वाहिगुरू नालों विछड़िया होया है ना बंदा, उस दे नाल जुड़ जाता है, एक रंग हो जाता है। सतगुरां ने आखिया पुनरप जन्म न लभ्या, ते अगला वचन कीतो ने, वेद पुराण शास्त्र विचारन एक अंकार नाम उड़तारन, कुल समूह सगले उदाहरण, बड़ भागी नानक को तारन। वेद पुराण शास्त्र विचारन, वेद पुराण शास्त्र दे नाम लिखण तो भाव है धर्म पुस्तकां, धर्म दीयां पुस्तकां, धर्म दीयां पुस्तकां कोई विचारे, वेद पुराण शास्त्र विचारन, तो उनके सामने एक गल आवेगी, धर्म पुस्तकां जदों विचारेगा तो पुस्तकां जिहड़ियां ने धर्म वाले पासे तोड़दियां ने, तो धर्म वाला पासा की है, एक अंकार नाम उतारन, वाहिगुरू जी दे नाल जुड़न दी प्रेरणा करदियां ने, वो उधर जुड़दा है, जिहड़ा जुड़दा है उले समूह सगले उदाहरण, वो आप ही नहीं तरदा, उहदियां सारियां पुल्लां तर जांदियां ने। बड़ भागी नानक को तारन, वड्डे भागां दे नाल ना ऐसे कोई विरले ने जिहड़े धर्म पुस्तकां पढ़ते ने, सुनते ने, विचारते ने ते करतार दे नाल जुड़ जाते हैं। मैं एक उदाहरण दिया आप जी के सामने। दीवा असीं किसनूं आखदे हां? दीवा साडे घरां विच इंडिया विच तां अक्सर अजे भी दीवे बलदे सन, जगदे सन, नहीं तो जदों बंदी छोड़ दिवस आउंदा ना अगे पिछे असीं जगाईए ना जगाईए उन्हां दिनां ते असीं जगाउंदे हां, खुशी का प्रतीक समझ के किसी न किसी रूप दे विच। जिहड़ा जग रिहा हुंदा है, जिस दे विच तेल पाया हुंदा है, अमीर लोग उहदे विच देसी घिओ भी पा लैंदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना रूह की वट्टी होंदी है, सधारण गरीब जिथों भी रूह मिली उहदी वट्टी वट के पा लेंदे ने, अमीर जिहड़े ने ताज़ी वधिया नवीं रूह लैके उहदी वट्टी वट के पाउंदे ने। फिर हुण सधारण लोग जिहड़े ने वो मिट्टी का छोटा जिहा दीवा बाजारों लिया के खरीद लैंदे ने, जाके खरीद लैंदे ने। अमीर जिहड़े ने पित्तल का दीवा खरीद लैंदे ने, और जिहड़े डाढे अमीर ने हो सकता सोने का दीवा बना लैण। सोने का भांडा होवे, विच वट्टी पाई होवे ताज़ी रूह दी, विच घिओ पाया होवे, उहदा नाम की होवेगा? भला दीवा ही होएगा ना। पर जद तक जगदा नहीं, उसनूं जलाया नहीं जाता, वो प्रकाश नहीं करता। प्रकाश करने वाले का नाम ही असां दीवा ही रखिया होया। जग रहा होवे ते असीं इवें कहना दीवा जल रहा कि नहीं जल रहा, जग रहा कि नहीं जल रहा, ना तो दीवा ही रखिया है ना। लेकिन ना जग रहा होवे ते फिर भी उसका नाम दीवा ही रखिया हुंदा। और असीं इसे ही उचेचा आखदे हां दीवा जल रहा है कि नहीं जल रहा, क्योंकि दीवे का मनोरथ है कि दीवा जले। भावें मिट्टी का भांडा होवे ते भावें सोने का भांडा होवे, भावें तेल पाया होवे ते भावें घिओ पाया होवे, कोई भी रूह होवे, जब तक जलदा नहीं तब तक उनका प्रकाश नहीं हुंदा। प्रकाश नहीं हुंदा ते अंधेरा दूर नहीं हुंदा। कबीर साहब ने उदाहरण देंदे बड़े प्यार नाल आख्या, अंधियारे दीपक चाहिए एक वस्तु गोचर लहीए। गुरु साहब ने आख्या दीवा बले अंधेरा जाए, ऐसा होना चाहिए है ना। जड़ियाँ धर्म पुस्तकां ने ना साडे पास, मैंने इस पास इशारा किया है, सुभावक ही हो गया। साडा धर्म ग्रंथ है ना, असी प्यार दे नाल अदब नाल गुरु ग्रंथ आखते। हाँ जी ठीक है ना। लोगों के वास्ते ये होली बुक हो सकती है,
एक पवित्र किताब हो सकती, किताब शब्द फारसी का है जिसका अर्थ लिया जाता है धर्म पुस्तक। किसी लिए धार्मिक किताब हो सकती है, किसी लिए होली बुक हो सकती है। साडे लई ये साडा धर्म ग्रंथ भी है, पर इस तो वध के धर्म ग्रंथ तो अगे असी अदब दे नाल नमस्कार करते हैं। गुरु ग्रंथ ने साडे, है ना। कोई होर इसनूं गुरु मन्ने ते भावें ना मन्ने, साडा किसी ते कोई गिला नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के सिख तो गुरु मनते नहीं ना। यही एक बहुत बड़ा अंतर है जिहड़ा असी कई बार साबित नहीं कर सकते हुंदे। बई आम जिहड़ियां धर्म पुस्तकां ने उन्हां विच ते जिहड़ी तुहाडी धर्म पुस्तक है जिहनूं तुसीं गुरु ग्रंथ आखदे हो, दसो इहदे विच की अंतर है ते की अंतर है। असीं कहंदे गुरु ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ते दूजियां दे पास, किसी दे पास गीता होई पवित्र गीता, किसी दे पास पवित्र कुरान होया, किसी दे पास पवित्र बाइबल होई। आफ्टर ऑल उन्हां दियां मजहबी पुस्तकां ने, धर्म ग्रंथ ने उन्हां दे भी, उन्हां दे विच ते गुरु ग्रंथ साहिब च की अंतर है। लेकिन जिवें असीं प्रकाश करके अदब दे नाल आले दुआले जुड़ के बैठते हैं ते बैठण तो पहलां सारे आके मत्था टेकते हैं। अपनी अपनी पुस्तकों में इवें कोई भी मत्था नहीं टेकता, केवल असीं मत्था टेकते, केवल असीं अपनी धर्म पुस्तक के आले दुआले जुड़ के बैठते हैं। केवल असीं अपनी धर्म पुस्तक के सामने खड़ो के हथ जोड़ के असीं अरदास करते हैं। और इसे लिए असीं अपनी धर्म पुस्तक नूं, धर्म ग्रंथ नूं केवल धर्म ग्रंथ नहीं मानते, असीं गुरु ग्रंथ आखते हैं। पर असीं गुरु ग्रंथ आखदे होइए, मत्था असीं टेकदे होइए, उंज असीं पढ़दे होइए, पर असीं आखे ना लगदे होइए ते गुरु ग्रंथ हो के भी फिर साडे गुरु हैगे ने। हाँ जी, फिर दूजियां दियां धर्म पुस्तकों के नालों धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का फर्क तो होया, पर असां ने की फर्क समझिया। गैरां दियां गल्लां नहीं है भी इथों काले लंघदे लंघदे अंदर आ गए तो उन्होंने मत्था टेकिया साडे वाल वेख के, या गोरे आस्ट्रेलिया आ गए उन्होंने आके जिवें असीं मत्था टेकदे उन्होंने आके भी मत्था टेक दिता। गल्लां उन्हां दियां नहीं मैं कर रहा, वो तो एक रिस्पैक्ट देने वाली गल है। उन्हें वेख्या भी ये रिस्पैक्ट देंदे ते असीं भी रिस्पैक्ट देंदे हैं, वी रिस्पैक्ट इट। लेकिन असीं सिर्फ रिस्पैक्ट इसलिए नहीं देंदे कि साडी ये धर्म किताब ने, असीं इसलिए इन्नी रिस्पैक्ट देंदे हैं, अदब करते हैं कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने महाराज। पर जिहड़े गुरु गुरु कहण वाले ने, गुरु गुरु दीयां दुआइयां पाउण वाले ने, वह भी जे गुरु दे आखे ना लगन ते अखंड पाठां दीयां लड़ियां चलाई जाण लगातार, तो फिर दुख वाली गल नहीं आउंदी। हाँ जी, ये सच है, साडा अज दा सच है। मेरियां सत्कारयोग मातावां बिरधा बैठियां होणगियां या मेरे भाई बैठे होंगे, मैनूं चंगी तरह याद है अज तो तकरीबन 50 वरे पहला, 45 वरे पहला, 50 वरे पहला पिंड विच कदी कदी अखंड पाठ हुंदा सी, कदी कदी। तो जदों पिंड विच अखंड पाठ होना तो जाना ना पाठ करन वास्ते, तो सारा पिंड ही बिना बुलाया ही उस घर विच मत्था टेकण आउंदा हुंदा सी, बिना बुलाया। विआह ते कोई तद आवेगा जदों उसनूं सद्दिया जाएगा, लेकिन विआह तो पहला जदों अखंड पाठ रखिया होएगा किसी के सद्दण की लोड़ नहीं, हर कोई आपे ही चाह दे नाल आउंदा हुंदा सी। ये फर्क सी भाई जदों विआह दा दिन होएगा तो वही जाएगा जिन्होंने सद्दिया होएगा। पर गुरु ग्रंथ साहिब का महाराज का प्रकाश होया, पाठ होया है, हुण सद्दण का कोई मतलब नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब तो सारिਆਂ ਦਾ है ना, असीं चाह नाल जांदे हैं। इवें आया करते सन, शाम का टाइम होना, ड्यूटी रखी हुई होनी, जिवें तुसीं बैठे हो ना सारे जुड़ के हार भरिया होया होना। उदों गुरु ग्रंथ साहिब टावें टावें मिलते सन। हुण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीयां बेअंत बीड़ा छप चुकियां ने प्रेसां दे विच,
उदों किते टावां कोई इहो जिहा यतन करता होवेगा, थां थां ते इकोतरियां चलदियां पईयां ने। साडे कितने सारे इतिहासक स्थानां दे विच लगातार लड़ीवार अखंड पाठ चली जा रहे हैं। साडे कुछ ऐसे स्थान ने जिन्हां दे विच असीं अखंड पाठ किते अचानक उत्साह साडे अंदर आवे या लोड़ पै जाए, भीड़ा पै जाए, मर्यादा के अनुसार भीड़ा होवे या उत्साह होवे, असीं अखंड पाठ करवाना चाहिए, साडी वारी कोई नहीं सानूं मिलती कई कई सालों तक। अगे नालों प्रचार घट है कि ज्यादा है? मैं तो कहना बहुत प्रचार है। मैं हाथ में फड़ी बैठा सारी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की इसकी एक फाइल में है। सारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, सारी भाई गुरदास जी की रचना इसकी एक फाइल में दर्ज है। सारा महान कोश जे तुसां ने ग्रंथ वेखिया होवे, गुरशब्द रत्नाकर महान कोश भाई कान सिंह होरां दा, वो सारा एक फाइल दे विच है। तो मेरे माड़ा जिहा टच करन दे नाल इत्थों मिल सकदा है, मैनू मिल सकता है, तुहानू नहीं मिल सकता। इंटरनेट तो मिलिया है ना। ये सहूलतां पहलां हुंदियां सन। तुसीं हुण कार चला रहे हो तां देख सकते हो, सुन सकते हो, परदेसां विच होवो किते तां तुसीं पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन इहनूं हर वेले जेब च रखिया जा सकता, जेब च तक पै जांदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं तां असीं इवें नहीं ना वरत सकते, लै सकते। किन्नी सहूलत हो गई साडे कोल। कईयां ने पेन ड्राइव एडे एडे छोटे छोटे ने, उन्हां विच कितना कुछ भरिया होया, पर ये सारा कुछ होने के बावजूद फिर कोई शुभ चिंतक आखे सिखां दे विच ना पतताई की लहर चलती पई है। फिर कोई आखे कि सिखां दे विच अजकल नशियां की बड़ी भरमार हो गई, साडे बच्चों से नशियां की बड़ी भरमार हो गई है। की आखिए इन्हां कोल श्री गुरु ग्रंथ साहिब नहीं हैगा, ये कहना चाहिए। इन्होंने कभी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था नहीं टेकिया, असीं ये गल कह सकते हैं। इन्होंने कभी अखंड पाठ नहीं करवाया। माड़ी जी खुशी होवे, कोई कारण होवे, फटाफट नोट करवा जी अखंड पाठ होना चाहिए साडा जी। गुरुद्वारे में भावें एडजस्ट हो सके ना हो सके, डेट होवे ना हो सके, क्योंकि असीं चाहते हैं अखंड पाठ होना चाहिए है जी। तुसीं पाउंड लवो, तुसीं डॉलर लवो, तुसीं जो मर्जी एरो लवो, इन्ने जिन्ने तुसीं कहंदे हो असीं देण लई तैयार। अखंड पाठ साडा होना चाहिए। रुमाल लैके आ गए, माया लैके आ गए, असीं समझे भी अखंड पाठ हो गया अखंड पाठ, समझिया तो हो गया अखंड पाठ है। पर जो सानू कोई पूछे भी अखंड पाठ कर करा के तुहाडे जीवन में कितनी को तब्दीली आई, इस सवाल का जवाब असीं की देंगे? दुख वालियां गल्लां ने, डाढे दुख वालियां गल्लां। ये साडा दुख वाला पासा है कि जिवें ਉਹ लोग ਜਿਹੜੇ अजे गुरमत के दायरे विच नहीं आए सन ते भटकदे सन ना, गुरु घर विच आके उन्हां दी भटकना शांत हो गई। पर असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां विच जन्म तो लैके आ गए, जे असीं अज भी भटकदे होईए ते असीं सोच सकते हैं कि साडी भटकना किवें शांत होवेगी ते कदों शांत होवेगी, साडा की इलाज होएगा। हाँ जी, विचारां ध्यान बदो बदी ना लै जांदियां ने अगे। मैं तुहाडा ध्यान इस नुकते वाल खिंचना चाहुंदा, दिवाउणा चाहुंदा। जिस वेले सिख परिवार दे विच कोई बच्चा जन्म लैंदा है, बच्चे ने जन्म लिया, माँ उठन बैठन दे योग हो गई, बच्चे नूं लैके असीं कित्थे जांदे हुंदे? असीं चर्च विच जांदे हैं, हाँ जी, मस्जिद विच जांदे हैं, किसी मंदिर विच जांदे हैं कि असीं गुरुद्वारे जांदे हुंदे? असीं गुरुद्वारे जांदे हां। गुरुद्वारे जाना चाहिए है
तो गुरुद्वारे जाके असी की करते हैं, बच्चे को महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों से लटा देंगे। तो भाई दया सिंह लिखते ने मानयोग जी, कहते ने उस वेले ना फिर माँ भी अरदास करती है, बाप भी अरदास करता है, हे जीओ ये जीव तुहाडा भेजिया होया आया है, कृपा करियो जे इहनूं अपने चरणों नाल जोड़ना। यह मापियां की अरदास होती है, यह भावना रखते हैं। तो अरदास करके ना फिर ग्रंथी सिंह जी को आखते हैं, बाबा जी भाई साहब जी असी बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, तो महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब का की हुक्म है? हाँ जी, तुसीं इवें करदे हो?